ہندوستان کے مسلمانوں کو اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا چاہیے، تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو آج کی یہ ویڈیو ہندوستان میں رہنے والے ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری اور اہم ہونے والی ہے۔ ہر مسلمان اس ویڈیو کو لازمی اور ضرور دیکھے، کیونکہ ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ دکھانے والا ہوں اور بہت کچھ بتانے والا بھی ہوں۔ جیسا کہ میں اپنی اکثر و بیشتر ویڈیو میں کہا کرتا ہوں کہ امت کے حقوق کی خاطر، مسلمانوں کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کی خاطر، تمام مسلمانوں کو، چاہے وہ سنی ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، تمام کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جانا چاہیے۔ اور آج بحمدہ تعالی وہ دن آ گیا کہ ایک پلیٹ فارم پر، ایک اسٹیج پر سنی، دیوبندی، شیعہ، اہل حدیث، وہابی، تمام مذاہب کے لوگ جمع ہو گئے۔ میرے پیارے ناظرین، ویڈیو ایک ایک کر کے میں آپ کو دکھانے والا ہوں۔ آپ بڑی اطمینان سے، تسلی کے ساتھ ایک ایک ویڈیو کو دیکھتے جائیے، اور آخر میں بہت ضروری باتیں ہم آپ سے شیئر کرنے والے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو مجھے بناتے ہوئے بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ آپ بھی خوشی کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھیے، انجوائے کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اور یقیناً یہ لڑائی سب لوگوں کی ہے، اور اگر اس لڑائی کو اکیلے اکیلے لڑا جائے گا تو ہو سکتا ہے تھوڑی دن کے لیے وہ جیت جائیں، لیکن ایک بات کا یقین ہے، میں اپنے مسلمانوں سے اور فکر مند سٹیزن سے، بھارت کے جو لوگ چنتا میں ہے کہ یہ بھارت جا کیا کہاں رہا ہے، بنایا کیا جا رہا ہے، یہ جو میجورٹورین اسٹیٹ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کا بہترین جواب ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ اقلیتوں کی اکثریت کا ملک ہے، اور ہمیں صرف ہمیں نہیں جمع ہونا ہے بلکہ ہمیں اپنے ساتھ اور بھی سب کو جمع کرنا ہے۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ہر لڑائی کے لیے قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ لڑائی لڑیں گے اور آرام سے بیٹھے رہیں گے، کام نہیں ہوگا۔ اور جو بات انہوں نے کہی، انہوں نے کہی کہ بس انف، بہت ہو گیا، تو قربانی دینے کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ میں مہمانوں کا وقت نہیں لوں گا، میں تو اندر کا آدمی ہوں، مہمان نہیں ہوں۔ بہت سارے مہمان یہاں موجود ہیں، تو میں ایک شعر پہ اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آگے کا عزم ہے ہمارا۔ تھوڑی تکلیف رسن، کلیم ماجد مرحوم نے کہا تھا، تھوڑی تکلیف رسن پھر تھوڑی سی تکلیف دار۔ رسن کہتے ہیں جیل کو، تو اب صرف سڑک سے کام نہیں چلے گا۔ تھوڑی تکلیف رسن پھر تھوڑی سی تکلیف دار، اس کے بعد ہے دوستو آرام ہی آرام ہے۔ حاضرین کرام السلام علیکم۔ بہت کم وقت ہے، لہذا میں صرف 1 یا 2 منٹ میں آپ کی بات مکمل کر دوں گا۔ یہ کہا جا رہا ہے وقف بل اور وقف کی اٹھان کے لیے اور ترقی کے لیے بل ہے یہ، تو میں یہ عرض کروں گا، میں نے پہلے ہی دن کہہ دیا تھا، یہ وقف بل نہیں ہے بلکہ سانپ کا بل ہے۔ یہ وقف بل نہیں ہے، سانپ کا بل ہے، اس کے اندر زہر بھرا ہوا ہے۔ یہ صرف اور صرف مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بل بنایا گیا ہے، اور صرف تباہی اور بربادی کے لیے بل بنایا گیا ہے، اور کٹر وادیوں کو خوش کرنے کے لیے بل بنایا گیا ہے۔ آپ یاد رکھیں، ان کی بڑی غلط فہمی ہے، یہ سمجھتے ہیں نفرت کے ذریعے سے الیکشن جیتیں گے۔ ہندوستان محبت کی زمین ہے، محبت کی زمین ہے۔ یہاں اگر نفرت کا بیج بو گے تو بیج سڑ جائے گا، وہ یہاں محبت کی کھیتی پھلتی ہے۔ لہذا آپ محبت کا پیغام دیجئے، نفرت کا پیغام نہ دیجئے۔ بس جلدی سے 2 جملے کہا گیا کہ صاحب وہ جو ہے بڑا غریبوں کی مدد ہوگی، تو میں نے کہا کہ 1000 ٹن سونا مندروں کے اندر رکھا ہوا ہے، 1000 ٹن سونا۔ اگر غریبوں سے محبت ہے تو یہ دم سونا جو ہے یہ غریبوں میں بانٹ دو، تو سارے ہندوستان کے غریب دھنوان ہو جائیں گے۔ صرف ہمارے وقت سے محبت ہے تمہیں؟ ارے مندروں میں دیکھو، ہزاروں ٹن سونا وہاں چوری ہو رہا ہے، 400 کلو سونا چوری ہو گیا۔ تمہیں چوری
चोरी मंजूर है, गरीबों को देना मंजूर नहीं है। बस आखिरी जुमला करना चाहता हूँ, ये कहा गया कि फायदा होगा, इसमें एक्ट में ये है, एक्ट में कि गवर्नमेंट के पास जितनी भी जमीनें वक्फी हैं वो गवर्नमेंट की हो जाएंगी। इसका मतलब है कि चोर को चोरी का माल मिल जाएगा। ये कौन सा कानून है कि वो चुरा भी रहे हो और कह रहे हो चोरी के माल ही हमारा हो जाएगा? इससे बड़ा नुकसान और क्या हो सकता है। आप अपना धरना जारी रखिए, आप अपना आंदोलन जारी रखिए। सही अल्लाह, कोशिश हमारा काम है, फतह देना अल्लाह का काम है। इंशाल्लाह हमें फतह मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। दुश्मन शिकस्त खाएगा इंशाल्लाह। मोहम्मद व आले मोहम्मद। सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हिंदुस्तान का संविधान मुल्क के हर बाशिंदे को तहफ़्फ़ुज़ात के साथ अपने धर्म और कर्म, रहन और सहन के साथ जीने और खुलकर जीने की पूरी आज़ादी, खास तौर पर माइनॉरिटीज के लिए बहुत सेंसिटिव जहन रखता है। इसीलिए मुल्क का संविधान बनाने वाले दानिश्वरों ने 1947 से लेकर 1950 तक ये महसूस का आवाज को दबाने में कामयाब हो जाती है। इसलिए अक़लियत की आवाज को दबाया ना जाए और उनके हक हुकूक पर किसी तरह से अलग से माइनॉरिटीज के लिए कुछ सेक्शन कायम किए और कुछ दफात और आर्टिकल्स ऐसे रहे जिसमें ये बात लेके कन्याकुमारी की सरहदों तक और गुजरात की वादी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक मुकम्मल दात, हमारा निकाह, हमारा ब्याह, हमारा तलाक, हमारा मुहस्बा, हमारा वक्फ, हमारे मजहब के जितने भी कवानीन हैं, सारे कवानीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क के संविधान ने गारंटी दी है। मुल्क में हुकूमत सेकुलर होगी, ये भी मुल्क के संविधान का एक फैसला है। सेकुलर हुकूमत का मतलब होता है ला मजहब, कोई धर्म नहीं होगा, मगर सेकुलर मुल्क में उस बेधर्म हुक्मिक लोग अपनी जिंदगी धर्म की बुनियाद पर गुजारते हैं। उन तमामी तर लोगों के धर्म और कर्म की पूरी हिफाजत की गारंटी सेकुलर हुकूमत को लेनी है। और जहां किसी मजहब के अंदर किसी दूसरे ने अगर रुकावट पैदा की तो ऐसी सूरत में हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कानून उसके गरेबा। जहां हमारी और सारी चीजें हैं उसमें ये वक्फ की जायदादें हैं। जिस तरह नमाज और रोज़ा, हज और ज़कात हमारे लिए ज़रूरी है, उसी तरह से हज और रमज़ान के रोज़े और उसी तरह से वक्फ की जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ भी हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहले 2 मिनट में मैं ये बात साफ कर देना चाहता हूँ कि वक्फ की जायदाद का बैकग्राउंड क्या है। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपनी जायदाद खुदा के नाम पर वक्फ करते हुए मुसलमानों के हवाले किया। मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, कब्रिस्तान के लिए, दरगाहों के लिए, इमाम बाड़ों के लिए, ईदगाहों के लिए। वक्फ के कानून को हिंदुस्तान के संविधान ने इतनी मजबूती दी है कि जो चीज़ें वक्फ हो चुकी हैं उन्हें न मुसलमान खरीद सकता है न गैर मुस्लिम, न मुसलमान उन पर कब्जा कर सकता है न गैर मुस्लिम और न हुकूमत। मगर मुल्क के इस कानून की धज्जी इस तरह से उड़ाई गई, वक्फ की जायदाद पे कब्जा और तसल्लुत जमा कर हमें शर्मिंदा किया। हुकूमत को ये चाहिए था कि वक्फ तरमीमी एक्ट पेश करने के बजाय जहाँ जहाँ धांधलियाँ हो रही हैं उन धांधलियों को ख़त्म करते हुए मजबूत कानून का शिकंजा उन पे कसे, बजाय इसके हुकूमत ने वक्फ की जायदाद ही को हड़प करने का एक नापाक मंसूबा। ऐलान करता हूँ अपनी पार्टी की तरफ से और सारे हिंदुस्तान की उन दबी कुचली तमाम आवाजों की तरफ से जिन्हें आरएसएस ने सैकड़ों साल से जिनको दबाकर कुचल कर रखा है और अब वो संविधान को कुचलना चाहते हैं, बिल्डोज करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले दिन ही जब ये बिल लाया गया था साफ साफ कह दिया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पर सबसे बड़ा होने वाला आजादी के बाद हमला है, हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। दलितों के ऊपर
जो अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों के हुकूक जो खत्म हो रहे हैं और सिखों के मामलात में जो दखल अंदाजी हो रही है, ये क्या तमाशा रखा है? आप समझते हैं हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? देश की जनता के लोग, देश की जनता के मूड को पहचानिए। सारा ईवीएम से नहीं चलेगा, मुल्क संविधान से चलेगा। अगर कोई इस गलत फहमी में है तो उसको गलत फहमी दूर कर लेनी चाहिए। 24 के पैगाम ने इंतखाब ने पैगाम दिया। मुसलमानों के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जिस तरह से मजाक किया जा रहा है कि उनके मजहबी मामलात में दखल अंदाजी की जा रही है, ये बीजेपी वो पार्टी है जो एक मुसलमान को सारे मुल्क में एक सीट लोकसभा की नहीं दे सकती। वो वक्त की रक्षा क्या करेगी, हिफाजत क्या करेगी? ये वो लोग हैं कि जिनके मिनिस्टर के सामने लंदन की सड़कों पर देश का अपमान हो और इनके चेहरे पर कोई रंगत इनकी बदले ना, कोई उस पर स्टेटमेंट ना आए। ये कौन लोग हैं? देश की जमीन अरुणाचल और हिमाचल में खिसक रही है जमीन, उसके ऊपर सरकार ने आके बदली है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम इशू को उठाकर लड़ाकर अपनी सरकार को मजबूत करना चाहते हैं। मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं इस पैगाम के साथ कि ये लड़ाई लंबी है। ये लड़ाई उन अंग्रेजों के गुलामों से है जिन्होंने देश के साथ कभी अहद वफा नहीं किया, और ये देश के उन वफादारों से है जिन्होंने 100 साल तक देश की धरती को बचाने के लिए, देश की इज्जत और वकार को बचाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां। ये बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, एनक्रोचर्स को निकालने के लिए नहीं, ना उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए, बल्कि वक्फ की जायदादों को खत्म करने के लिए, मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानखाहें, कब्रस्तान को छीनने के लिए इस तरह का प्रोविजन उसमें रखा गया है। इनकी नीयत खराब है और ये चाहते हैं कि देश में और दूरियां बढ़े दो बड़े समुदायों में। नहीं, हमारा काम विरोध करना है क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, एनक्रोचर्स को निकालने के लिए नहीं, ना उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए, बल्कि वक्फ की जायदादों को खत्म करने के लिए, मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानखाहें, कब्रस्तान को छीनने के लिए इस तरह का प्रोविजन उसमें रखा गया है। तो इनकी नीयत खराब है और ये चाहते हैं कि देश में और दूरियां बढ़े दो बड़े समुदायों में। तो इसका विरोध, क्योंकि संख्या बल तो है बीजेपी। अरे हाँ, देखिए हम तो ये कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे अगर चंद्रबाबू नायडू, पासवान साहब और नीतीश कुमार और हमारे अजीत सिंह साहब के बेटे अगर इसका तायीद करेंगे तो इनको जनता जिंदगी भर याद रखेगी। बिहार में ले जाएंगे इस मुद्दे को नीतीश कुमार के खिलाफ ये देखते हुए, क्या बिहार में आप ले जाएंगे इस मुद्दे को? ये तो देश में जाएगा मुद्दा, सिर्फ बिहार के नहीं, देश में जाएगा, बिहार में जाएगा। तो मेरे प्यारे नाजरीन, 17 मार्च का वो तारीखी दिन जिस दिन में दिल्ली जंतर मंतर पार्क में तमाम मज़ाहिब फ़िक्र के लोग वक्फ की खातिर, यानी वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लाया जा रहा है उस बिल के अगेंस्ट में तमाम मुसलमानों के हुकूक की खातिर, मुसलमानों के जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत की खातिर सुन्नी, देवबंदी, शिया, वहाबी, अहले हदीस, तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग एक साथ जमा हो गए। ये कितनी खुशी की बात है। मैं जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था और हर वीडियो में अक्सर व बेशतर मैं अपनी यही बात कहा करता था कि आज हिंदुस्तान के जो हालात हैं, मुसलमानों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, हिंदुस्तान में लिंचिंग की जा रही है मुसलमानों की, उन्हें सताया जा रहा है, ऐसे माहौल में तमाम लोगों को एक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, अपना अपना अकीदा रख कर के, अकीदे से छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं। अब देखिए इस प्लेटफॉर्म पे मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी जो अहले सुन्नत व जमाअत से ताल्लुक़ रखते हैं ये भी मौजूद थे, मौलाना महमूद मदनी जो जमीयत उलमा हिंद से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका ताल्लुक़ देवबंद से है, ये भी मौजूद थे, मौलाना कल्बे जवाद जिनका ताल्लुक़ शिया मज़हब से है, ये भी मौजूद थे, ओवैसी साहब कट्टर सुन्नी ये भी मौजूद थे, और मुहिबुल्लाह नदवी साहब भी मौजूद थे। जबकि ओवैसी साहब मौलाना महमूद मदनी साहब में आपस में बनते नहीं हैं, जैसा कि आपने कुछ महीने पहले है ना वीडियोस देखी होंगी, लेकिन उम्मत के हुकूक की खातिर, वक्फ की खातिर है ना, ओवैसी साहब मौलाना महमूद मदनी एक स्टेज पर जमा हो चुके हैं। तो अब वक्त आ गया है, क्योंकि जब मुसलमान की लिंचिंग की जाती है, उसे मारा जाता है, पीटा जाता है, मुसलमानों पर जुल्म व सितम किए जाते हैं, तो सामने वाला आपको ये नहीं देखता
ये कह के नहीं मारता, ये कह के लिंचिंग नहीं करता कि आप सुन्नी हैं या देवबंदी हैं या वहाबी हैं या शिया हैं। वो बस आपको देखता है कि आप दाढ़ी है, टोपी है, कुर्ता पजामा है, आप एक मुसलमान हैं। तो एज ए मुस्लिम तमाम लोगों को मुत्तहिद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना अपना अकीदा अपने पास रखें। सुन्नियों का अकीदा उनके पास, वहाबियों का अकीदा उनके पास, देवबंदियों का अकीदा उनके पास, शियाओं का अकीदा उनके पास। इसलिए कि अगर अकीदे में छेड़छाड़ की जाएगी तो इत्तिहाद मुमकिन नहीं है। हाँ, अपना अपना अकीदा अपने पास रखें, ठीक है, और उम्मत के हुकूक की खातिर, मुसलमानों के हिफाजत की खातिर, मुसलमानों की लड़ाई लड़ने के लिए एक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इस है ना अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ दिल्ली जंतर मंतर में तशरीफ़ लाए हैं। मैं सबकी वीडियोस आपको नहीं दिखा सकता, वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कुछ अहम लोग जो बड़ी शख्सियात, बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं, उनको मैंने वीडियो में कवर किया है। आप हजरात की जिम्मेदारी है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं और अल्लाह ताला से दुआ करें कि वक्फ बिल पास ना हो पाए संसद में। जैसा कि लाखों की तादाद में मुसलमान जंतर मंतर पर पहुंचे थे, प्रोटेस्ट किया, धरना किया। मैं भी जाना चाहता था लेकिन किसी मजबूरी के तहत नहीं जा सका। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जब भी कहीं इस तरह का मौका आएगा तो मैं ज़रूर जाऊंगा। अस्सलामु अलैकुम। अगर आप सब लोग वक्फ बिल संशोधन को रोकना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल करें।